very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know from the previous few classes, we are continuously studying the chapter and that is consumer equilibrium. So in this chapter we have already discussed about the topic, that is what is the meaning of the consumer and the meaning of utility, what are the different features of the utility, what is total utility, what is marginal utility. Next we have discussed about the law of diminishing marginal utility. After that we have started the topic that is consumer's equilibrium in case of one commodity and the consumer equilibrium in case of two commodities. We have already discussed. In the last class we have started the topic that is consumer behavior, a study of the consumer behavior through the ordinal system or the ordinal behavior. So in which we have discussed the what is consumption bundle. So consumption bundle is simply the combination of the quantities of the two goods. Okay, next we have discussed the what is the budget set. So budget set is the all combination of the two goods any consumer is consuming or the purchasing when his money income is given as well as the available or the prevailing market price. So it should be the condition that the expenditure of the consumer, it should be equal or it should be less than the money income of the consumer. दोनों ही केस की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, मनी इनकम से वो कब होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये पढ़ा था. As well as we have seen the several example of this. After that we have started the budget line. The budget line is also known as the price line. Budget line or the price line is the graphical presentation of all the bundles of the goods when the income of the consumer is given at the prevailing market price. की कोई भी मार्केट प्रिवेल कर कोई भी प्राइस प्रिवेल करिए मार्केट में, उस प्राइस पे कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज़ के बंडल्स को परचेज कर रहा है जब उसकी मनी इनकम गिवन है. तो उस केस में देखो P1 प्लस X1 P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर. ठीक है, फिर इसके एक डायग्राम के हेल्प से और एक स्केड्यूल के हेल्प से हम लोगों ने प्राइस लाइन और बजट लाइन को देखा था. अटेनेबल पॉइंट्स क्या थे, सारे अटेनेबल पॉइंट्स थे. इस पे सारे अटेनेबल थे जो भी बजट लाइन थे और जो अंदर है, बट बाहर वाले पॉइंट्स अटेनेबल नहीं थे. ये सारे नॉन अटेनेबल थे. क्यों? यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज मोर देन दी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखी थी, दैट इज फीचर्स ऑफ दी budget line or the price line. So what are the different features of the budget line and price line? Consumer budget constant, ये सारे देखे थे. So in today's class we are going to discuss about the curves. So when the income of the consumer is increasing or decreasing, or we have taken all the other factors as the constant, ये देखेंगे. As well as हम लोग ये देखेंगे कि when there is change in the price of the good one and the price of the good two and the income of the consumer is the fixed. So if the price of the good one increases, so what will impact on the curve? If the price of the good two increases and the income of the consumer and the price of the good one is constant, so what will affect on the curve? As well as we have also seen that when the price of the good one and the good two also increasing or decreasing simultaneously. So if the price of the good one increases and the price of the good two falls, so what will impact on the curve? And if the price of the good two rises and the price of the good two is rise and the second one is falls, and the second one is when the price of the good one falls and the price of the good two rises. So what will impact on the diagram? So we will discuss all these curves as well as the concept one by one. Okay, so the topic that we have already completed. So one should have recapitulate all the topics one by one so that we can't forget all the things, because if we move to the next and the next chapter, so all the things are interrelated to each other. That's why the concept of all the item, it should be clear. And the topic that is budget constant, it just simply means when the expenditure of the consumer. When we talk about the expenditure of the consumer, it should not be more than the money income of the consumer. Please
year we have already discussed. So in today's class we are going to study some changes occurs in the income and the prices of the goods. So let's get started. So the next topic is that is changes in the budget line. Changes in budget line. So in this we have to study the two cases when the changes in the budget line when the only one variable or the one factor or one determinant change, and the second when the all the determinant will be changed. Okay, so let's discuss with the first one, that is changes in budget line. Changes in budget line when only one determinant, when only one determinant changes. मतलब बस एक वेरिएबल और एक में ही क्या होगा, चेंजेस होगा. So changes in उसमें क्या क्या हो सकता है कि इसमें चेंजेस इन दी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, second one is price of good one, and the second one is price of good. इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे चेंजेस इन दी बजट लाइन, कि बजट लाइन में चेंज कब होगा, तो पहली कंडीशन ये है कि व्हेन द चेंजेस अकर्स ओनली इन दी वन फैक्टर्स. मतलब वन फैक्टर क्या होगा, बस एक ही डिटर्मिनेंट में चेंजेस होगा और सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, ओके. सो चेंजेस हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड वन एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू. सो फर्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज चेंजेस इन इनकम. चेंजेस इन इनकम जब हम लोग देखते हैं, इनकम में जब चेंज हो रहा है तो उस केस में देखते हैं कि अज्यूमिंग दैट, अज्यूम क्या करते हैं, द प्राइस ऑफ द बोथ द गुड्स. ओके, बोथ द गुड्स मीन्स प्राइस ऑफ गुड वन एंड द गुड टू. द प्राइस ऑफ द बोथ द गुड्स इज द रिमेन अनचेंज. वो क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, ओके. एंड बजट लाइन विल चेंज विद द चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और बजट लाइन जो भी चेंज हो रहा है, चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और बजट लाइन में जो भी चेंज होगा वो क्यों होगा, बस चेंजेस इन द बजट लाइन में कुछ चेंज होने पर ही उसमें चेंज होगा. ठीक है, तो पहला है दैट इज एन इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम. तो चेंजेस इन इनकम में दो कंडीशन हो जाएगी, एंड इंक्रीज इन इनकम second one is a decrease in income. ठीक है, दो कंडीशन होगी, एन इंक्रीज इन इनकम और अ डिक्रीज इन इनकम. कि जब इनकम में चेंज होगा तो क्या होगा, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन. सो देयर इज सिंपली नॉर्मली हम लोग एक बजट लाइन बनाएंगे. good 1 on x-axis and good 2 on y-axis. Okay.
normal budget line is given here, that is AF or AB. AB is the budget line. एक budget line given है. फिर कह रहा है an increase in income. If the income of the consumer, ठीक है, income of the consumer क्या होती है, वो increase करती है. So what will happen? So if there is increase in income, income जो होती है वो increase हो रही है consumer की. अब for example अगर consumer क्या था, consumer की income 50,000, ठीक है, बट अब consumer की income 80,000 हो गई. तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसका कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा. कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो भी इंक्रीजेज. सो द बजट लाइन विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. फिर बजट लाइन क्या हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट. सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. दैट इज A1 and B. ओके, सो सिंपल. इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बजट लाइन विल ऑल्सो बी शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. नेक्स्ट है दैट इज डिक्रीज इन इनकम. सो पुट वन ऑन दी y axis, सॉरी x axis, and put 2 on the y axis. So normal budget line is given here. AB. So if the income of the consumer decreases, for example, a man is earning the 50,000, okay, but due to COVID or due to another contingency, the income of the consumer decreases up to the 20,000. उसकी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 20,000 हो गई. अब जब उसका बजट, अब वो अपना जो भी बजट प्रिपेयर करेगा तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ हिज कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो अब उसका जो भी कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज इनकम इज डिक्रीज. और जैसे ही इनकम क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी. इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो इट विल शिफ्ट टू दी A2 and B2. Right? Got it? I think so. You are understanding all these things. So it should be parallel, ना? ये parallel होगा एक दूसरे के. तो ये क्या था? Changes in the income. If the income of the consumer is change. कि consumer की income क्या है, वो change हुई है. तो जैसे ही consumer की income change होगी, so consumer की income कैसे change हो सकती है? Consumer की income या तो इंक्रीज होगी या तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी. सो इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, जैसे उसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. कर्व क्या हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. एंड इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज डिक्रीज्ड, जैसे इनकम कंज्यूमर की क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, तो जो बजट लाइन है इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट. ठीक है. Next one is changes in the price of the good one. If the price of the good one changes. Changes in price of good one.
गुड वन हम लोग पढ़ रहे हैं. सो चेंजेस इन दी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज constant. Okay, so there is only changes in the price of the good one. जो गुड वन है उसी की प्राइस में ही क्या होगा, वो चेंज होगा. बाकी क्या है, इनकम जो कंज्यूमर की है और प्राइस जो है गुड टू का, इट इज कांस्टेंट. वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. तो अब इसमें दो कंडीशन होगी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन एंड सेकेंड वन इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड. First one is an increase in price of good one, and the second one is a decrease in price of दो कंडीशन हो गई, कैन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन. ठीक है. अगर किसी भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग हियर द एग्जांपल ऑफ द एप्पल, सो इफ द प्राइस ऑफ द एप्पल इज इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल फर्स्टली द प्राइस ऑफ द एप्पल इज ₹100 पर केजी. पहले 100 पर केजी एप्पल, बट नाउ द प्राइस ऑफ द एप्पल इज ₹200 पर केजी. ठीक है. अभी प्राइस क्या हो गई है, 200 पर केजी. सो इन दिस केस आप क्या देख रहे हो, हम लोग ये देख रहे हैं इस केस में क्या होगा कि 100 पहले 100 रुपीज़ का पर केजी एप्पल मिला था, बट अब एप्पल क्या है, वो 200 पर केजी मिल रहा है. तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगी किसी भी कमोडिटी की, तो इसकी डिमांड हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे. अब हम लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे एप्पल की. क्यों? क्योंकि एप्पल की प्राइस बढ़ने से वो कॉस्टलियर हो गया, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, वो प्राइस बढ़ते ही डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जैसे ही पहले ये एप्पल क्या था, 100 पर केजी था, बट नाउ क्या हो गया है, ये 50 पर केजी हो गया है. तो जैसे ही इसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड विल इंक्रीज, और जैसे ही अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट. डिमांड कम होगी तो कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट. सो फर्स्ट वन इज दैट इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन. So good one will make the budget line steeper. Good one क्या करेगा, बजट लाइन को ज़्यादा स्टीपर कर देगा, ज़्यादा स्टैंड में कर देगा. तब कंज्यूमर बाय लेस ऑफ द गुड वन. सो द कर्व रोटेट्स लेफ्ट. कर्व क्या होगा, रोटेट करेगा लेफ्ट में फ्रॉम AB टू AB. देखते हैं कैसे. ठीक है. सो दिस इज योर AB budget line, गुड वन, x axis 0, y axis गुड. ठीक है. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन. गुड वन की प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. सो इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन इंक्रीजेज, सो द डिमांड फॉर द गुड वन विल बी डिक्रीज. It become B. So in this case, curve will shift to leftward from AB to AB. ठीक है. कर्व क्या होगा, वो शिफ्ट होगा. ओके. सो कर्व क्या होगा, वो राइटवर्ड में, सॉरी लेफ्टवर्ड में
शिफ्ट होगा इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन इंक्रीज। तो डिमांड क्या हो जाएगी गुड वन की, कम हो जाएगी। जब कम होगी तो कर्व लेफ्टवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड क्या होगा, एंड डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ द गुड वन। सो हियर एक्स एक्सिस, y axis 0, good 1, good 2. This is AB curve, and the condition is given here. What the condition is given here? That the basically the price of the good 1 and the good 2. So the price of the good 1 decrease हो रहा है. If the price of the good one decrease, जैसे ही प्राइस क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एप्पल क्या था, वो पहले 100 पर केजी मिल रहा था, बट एप्पल अब क्या है वो 50 पर केजी। तो प्राइस जैसे ही कम होगी सो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही गुड वन की डिमांड इंक्रीज होगी सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड। कर्व क्या होगा, वो राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। So, the now curve will shift to rightward from AB to AB। ठीक है, कर्व क्या हो गया, कर्व शिफ्ट हो गया। कैसे, AB से AB2 पे। क्यों शिफ्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस है गुड वन की, प्राइस ऑफ द गुड वन इज डिक्रीज। और जैसे ही प्राइस गुड वन की डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, गुड वन की इंक्रीज हो जाएगी। और इफ द डिमांड ऑफ द एनी कमोडिटी इंक्रीजेस सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट वर्ड। कर्व क्या होता है, वो राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम AB टू AB2। और एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड वन में क्या हुआ था कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगी तो कोई भी कमोडिटी क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी। और कमोडिटी कॉस्टलियर होने का मतलब है कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड अगर डिक्रीज हो जाएगी सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड फ्रॉम AB टू AB1। देखिए इनसाइड हो गया और वो पूरा, और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड वन में कर्व क्या हो गया, वो आउटसाइड हो गया। So this is the condition of the increase in the price of the good one and the decrease in the price of the good two. Okay. Next one is if there is change in the price of the good two. So increase income of the consumer and the price of the good one is constant. And increase in the price of the good two. चेंजेस इन द प्राइस। अब नेक्स्ट जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, चेंज किस में हो रहा है, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड टू की प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब इंक्रीज होगी प्राइस ऑफ द गुड टू तब क्या कंडीशन होगा, एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड टू तब क्या कंडीशन होगा। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल डील विद द एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड टू।
good 1, good 2. So this is the budget line AB. Okay. So an increase in the price of the good 2. अगर good 2 का प्राइस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. So if the price of the good 2 increases, so the demand for the commodity 2 is decreases. And if it is decreases, so the curve will inside. The curve will downward होगा. So from AB to AB. Okay. Okay, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि an increase in the price of the good 2, so it will rotate the budget line towards leftward from the AB to A1 B or the so the curve will move. The curve will move left from AB to A1. AB से कर्व क्या जा रहा है, A1 B हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द गुड 1 इंक्रीज, सॉरी प्राइस ऑफ द गुड 2 इंक्रीज हो रही है और सारे फैक्टर्स क्या हैं हमारे गुड 1 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट. So the curve will shift, will move left from AB to A1 B. ठीक है. अब इसकी बात करते हैं सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, दैट इज गुड 1 this is the curve. Okay. ठीक है, ये कर्व दे रखा है AB. अब कह रहा है कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड 2. जो गुड 2 की प्राइस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगी, सो डिमांड ऑफ दोस कमोडिटी, सो द कर्व विल go to the upward. Okay, it will make a curve will move right from AB to A2. कर्व क्या करेगा, वो मूव करेगा. ठीक है. सो द कर्व विल मूव टू राइट फ्रॉम AB to A2 B. ठीक है. तो ये क्या कंडीशन थी, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड 2. जब चेंज किस में हो रहा है, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड 2. गुड 2 अगर चेंज हो रहा है. ठीक है. सो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, चेंजेस इन द बजट लाइन में ओनली वन डिटर्मिनेंट चेंज होगा, एक डिटर्मिनेंट बस चेंज होगा, दैट इज चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड 1, प्राइस ऑफ द गुड 2. तो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ टू गुड्स की बात करते हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा, गुड 2 अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा. डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड 2, so the curve will move to be rightward from AB to A2 B. So this is all about your